going to explain you a poem named A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Norris. He was born in 1921 and got died in 2006. He was a prize-winning Welsh poet and short स्टोरी राइटर. तो वो स्टोरी राइटर थे एंड पोएट भी काफ़ी अच्छे थे वो. ही इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्श राइटर. सो वेल्श का मतलब होता है WELSH. इसका मतलब होता है द पोइट्री दैट मे रेफर टू द in the language of Welsh. Welsh is a language, a poetry in English from Wales or other poetry written in Wales or by Welsh poets. तो Welsh एक language है. Okay, understood? So he was a Welsh poet. Norris was a Welsh poet, right? He was considered as a very important Welsh writer of the post-war period, and his literary work have won many prizes as well. His famous work are Finding Gold, The Lauder Winder, Phoenix, Living Poets series, Ransoms, etc. ये सारी उनकी पोएम्स के नाम हैं. ओके, इनके काफ़ी फेमस वर्क है. ओके, so before explaining you the poem, I would like you to give a short introduction to the poem A Tiger in the Zoo. So this poem is written by Leslie Norris, explains the agony means pain, and helplessness of a caged tiger that lives in the zoo. तो एक कैसे एक टाइगर को, जिसको एक बहुत बड़ी जगह चाहिए दौड़ने के लिए, भागने के लिए, अपनी लाइफ बिताने के लिए, क्योंकि दैट इज़ द नेचुरल ऑक्यूपेशन ऑफ अ टाइगर. बट जब वो एक केज में बंद हो जाता है तो उसके पेन, उसके हेल्पलेसनेस के बारे में द राइटर हैज़ टोल्ड इन दिस पोएम. द पोएट एक्सप्लेन्स दैट हिज लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल. सो ही ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए थी अगर वो फ्री एनिमल होता. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. तो कैसे जो humans के fun के लिए animals को cage करते हैं, उनकी condition कैसी होती है. This is what has been explained in this poem. Okay, first of all we'll read the poem and then I will explain you paragraph wise. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet. In his quiet rage, we should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he locked in the concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Okay, so let's start with the explanation. First paragraph says he stalks in his vivid strips. स्टॉक्स मतलब होता है फॉलो करना, टू फॉलो. विविड मीन्स ब्राइट कलर्ड. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स मीन्स अ पॉज ऑफ टाइगर. पॉ का मतलब होता है पंजे, PAW, पॉ, PAW इज पॉज ऑफ टाइगर. सो पंजे, उसको हम पैड्स बोल रहे हैं. In his quiet rage, rage का मतलब होता है anger and quiet means शांत, silent. So literary device used here is personification. किसी को अगर symbolize किया गया है, किसी से किसी चीज़ को compare किया जाता है तो उसको personification बोलते हैं. तो here the tiger is personified because the poet refer him as he. अगर animals के लिए we always use it as a pronoun. ही और शी यूज़ नहीं करते हैं, बट यहाँ पर पोएट ने
टाइगर के लिए ही यूज़ किया है, तो यहाँ पे उसने पर्सोनिफाई किया है उसको, ठीक है। द अदर इज मेटाफोर, टाइगर्स पॉज आर कंपेयर्ड विद वेलवेट, पैड्स ऑफ वेलवेट। तो अगर किसी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं विच आर टोटली डिफरेंट, दैट इज़ नोन दैट लिटरेरी डिवाइस इज़ नोन एज मेटाफोर। सो टाइगर के पॉज को यहाँ पर वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है इस पैराग्राफ में। देन देयर इज इमेजरी, द पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज अबाउट द टाइगर। जब भी किसी पोएम में किसी के बारे में डिस्क्राइब कर किसी की इमेज रीडर्स के माइंड में बनाने की कोशिश की जाती है, उसको हम इमेजरी बोलते हैं। सो हियर द पोएट ट्राइज टू create an image in the reader's mind about the tiger by saying he stalks in his vivid strips the few steps of his cage. Okay, then there is assonance. Assonance मतलब जब भी A to Z there are 5 vowels A E I O U, अगर किसी इन्हीं में से किसी एक वॉवल का साउंड एक लाइन में प्रोमिनेंटली आ रहा, उभर कर आता है इन डिफरेंट प्लेसेस, उसको हम एसोनेंस बोल देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन द लाइन इन हिज विविड स्ट्रिप्स, सो आई इज द वॉवल विच हैज़ बीन where the sound of I is coming prominently in this line. Similarly हमारे पास alliteration होता है। alliteration बिल्कुल इसका उल्टा होता है। A to Z there are 5 vowels A E I O U except and rest of the alphabets are known as consonant. अगर किसी consonant का sound किसी भी line में prominently उभर कर आता है at different places, it is known as alliteration. For example, stalks his strips, so S is the sound which has been coming prominently in this line. Then oxymoron is used here. oxymoron क्या होता है? अगर किसी भी word का adjective उससे opposite हो, उसको हम oxymoron बोलते हैं। For example, last word क्वाइट रेज, रेज मतलब होता है एंगर। क्या एंगर कभी भी क्वाइट हो सकता है? कभी भी शांत गुस्सा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पोएम में क्वाइट रेज के थ्रू ऑक्सीमोरॉन दिखाया गया है। रेज इज़ एंगर बट रेज कैन नेवर बी क्वाइट, सो द एडजेक्टिव यूज फॉर रेज इज जस्ट ऑपोजिट टू द वर्ड रेज। ओके, let's see what is the meaning of this paragraph. So here the poet says the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. तो जहाँ पे जो टाइगर है वो जैसे कन्फाइन मतलब उसको केज में जैसे करके जो बांधा गया है उसको उसमें कन्फाइन कर दिया है, तो वो जो इन द जू मूव्स अराउंड इन द केज, और वो इधर से उधर मूव कर रहा है। अंडर हिज ब्राइट कलर्ड स्किन इट इज़ यूज्ड, यहाँ पे लिखा है ना, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, ही इज़ मूविंग इन हिज ब्राइट कलर्ड स्किन। ही फर्दर सेज दैट द टाइगर कैन टेक ओनली अ फ्यू स्टेप्स बिकॉज द केज इज़ स्मॉल। अब उनकी जो नेचुरल हैबिटेट होती है वो होती है जंगल्स, जहाँ पे वो भाग सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। तो वो उनका अडेप्टिव नेचर होता है। अब उसी टाइगर को अगर हम किसी केज में बंद कर देते हैं तो वो कहीं चल नहीं पाता, तो वी कैन ओनली टेक्स फ्यू स्टेप्स क्योंकि केज बहुत स्मॉल है। वन कैन नॉट हेयर हिज फुटस्टेप्स बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट like velvet, because of which there is no sound of tiger's footstep। बट कोई भी उसके footsteps सुन नहीं सकता क्योंकि जो टाइगर के footsteps होते हैं, जो उनका पॉज होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। दे आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट। वेलवेट शनील का कपड़ा होता है, तो वैसे बिल्कुल वेलवेट की तरह वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं उनके पॉज। तो इतनी धीरे धीरे वो इतने सॉफ्ट फीट के साथ जब चलते हैं तो कोई साउंड क्रिएट नहीं होता। दैट इज़ द रीज़न नो वन कैन लिसन टाइगर्स फुटस्टेप्स। The tiger tries to control his anger by quietly walking in the limited area of his cage। तो अपने एंगर को शांत तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है while walking
वही उसी लिमिटेड एरिया ऑफ द केज में. ही इज़ एंग्री बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री. अगर आपको आपको ही अगर बांध दिया जाए तो यू विल बी एंग्री कि मुझे बांधा क्यों है. इफ़ यू विल बी कन्फाइंड इन अ रूम लेट्स से ऑफ योर हाउस, यू विल फील कन्फाइंड कि तुम फ्री नहीं हो. यू कांट गो एनी वेयर. You don't have that permission, because so that similarly with the animals also, he is angry because he is not free. He didn't have the freedom to go out of this cage, to run, to hunt. They don't have any freedom. That is why he is angry. Okay, let's read the next paragraph. He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water. Whole deer, plum deer pass. लर्किंग मतलब होता है टू बी हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे. जब हम लर्किंग मतलब होता है कि आप जब कोई प्रे आता है, प्रे मतलब बेट. अगर जैसे कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो अपने उनसे छोटे एनिमल्स को प्रे बनाते हैं, शिकार बनाते हैं. प्रे का मतलब होता है शिकार बनाना. तो वो लोग एक जगह वेट करते हैं छुप कर. दैट इज़ नोन एज लर्किंग इन इंग्लिश. छुप कर वेट करते हैं फॉर देयर prey, for their shikar. So that is the meaning of lurking. So the literary devices used in this paragraph is alliteration. As I've told earlier, consonant का sound अगर prominently किसी line में आता है at the start of the two words, okay, or more words near that, तो वो alliteration होता है. For example, इसमें last line है deer plum deer pass, तो P is the sound. ठीक है. फिर imagery when the poet tries to create an image. इस जैसे पहले वाले पैराग्राफ में the poet tries to create the image of a tiger. In this paragraph the poet is trying to create the image of the tiger's activity. ठीक है. by saying lurking in shadow मतलब छुपना. ठीक है. एंड टू वेट फॉर द प्रे. तो ऐसे वो इस तरीके से वो टाइगर की एक्टिविटीज़ का इमेज क्रिएट करें इन द रीडर्स माइंड. ओके, सो दिस इज़ यूज्ड. सो इन होल दिस पैराग्राफ मीन्स द पोएट says that if this tiger was free, he would have hid himself behind the long grass near the water body so that he could easily catch a deer in order to have it as a food. So पोएट कह रहे हैं कि अगर ये टाइगर फ्री होता, इस टाइम पे केज पे नहीं बंधा होता, तो इस समय वो क्या कर रहा होता जंगल में. तो वो अपने आप को कहीं छुपा बैठा होता बिहाइंड द लॉन्ग ग्रासेस नियर द वाटर बॉडीज़. मतलब सी या फिर लेक के पास जो लॉन्ग ग्रासेस होती हैं उसके पीछे वो कहीं छुपा हुआ होता, जिससे कि वो अपना जो शिकार है विच इज़ अ डियर, वो कैच कर ले एज अ फूड. बेसिकली द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द एक्चुअल लाइफ ऑफ अ टाइगर इज़ टू लिव इन अ जंगल. वही मतलब जो बेसिक आइडिया है इस पोएम का वो यही है. पोएट यही कहना चाहते हैं कि जो उनकी एक्चुअल लाइफ है टाइगर की वो जंगल में रहने की है. वेयर ही कुड क्रैच हिज प्रे, जहाँ पे वो अपने शिकार पकड़ सकते हैं एंड ईट इट. बट द टाइगर इन द केज कैन नॉट डू सो. बट टाइगर जो केज में है वो ये नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री. ओके, सो एंडिंग दिस वीडियो है. आई विल एक्सप्लेन यू the next 3 paragraphs in the next video. I would like you to go through this, and if you not understand anything you can come to me and I will explain you. Thank you.